Praise the Lord and good morning to everybody who has again joined us in this prayer. आप सबको शुभ प्रभात और उन सब लोगों को जो हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद और सलाम कहना चाहता हूँ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से। We are in the book of Proverbs and what a beautiful journey it has been। हम नीति वचन की किताब में हैं और क्या ही खूबसूरत सफ़र रहा है हमारा और आपका उसमें। आज भी खुदावंद के कलाम से एक बहुत ख़ास बात आपके संग बांटना चाहूँगा जिसको मैं और आप में से हर एक जन चाहता है। Again today from the word of God I'm going to share with you something which each and everybody of us I believe we want this to happen in our lives and we continually look for it। हम इसके लिए लगातार इसको ढूंढते रहते हैं। Now if I ask you a question, who is there who is looking for riches? Who is there who is looking for honor? Who is there who is looking for wealth? कौन है इस समय हमारे साथ कौन है जो धन और प्रतिष्ठा और बढ़ोतरी को चाहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को चाहता है। If I ask you like who is among us who looks after all these things, then I am sure each one of us, nobody will say that I don't want it. And let me tell you, even God wants to bless you with that। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे कि नहीं मुझे तो धन नहीं चाहिए, मुझे तो प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे तो ये नहीं चाहिए। लेकिन हम में से हर एक जन चाहता है और आपको बताना चाहता हूँ खुदा बाप भी मुझे और आपको देना चाहता है। खुदा बाप भी मुझे और आपको ब्लेस करना चाहता है, वो भी मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है। आज का वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ 18वीं आयत को। ध्यान से सुनिएगा, नीति वचन 8 बाब 18वीं आयत। This word is from the book of Proverbs chapter 8 and verse 18. It says, riches and honor are with me. Wow, you know, I'm talking about the understanding of God. Understanding of God is saying that riches and honor are with me. जो धन है और जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, वो मेरे साथ है। We look for riches. If you want riches, go and seek the understanding of God. If you want riches, start loving the understanding of God। अगर आप धनी होना चाहते हैं, आप खुदावंद की बुद्धि की खोज में लग जाइए। अगर आप धनी होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की समझ को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लग जाइए। एंड आगे लिखा है enduring wealth and righteousness। वाओ, लिखा है enduring wealth and righteousness। इसे हिंदी में भी आपके लिए पढ़ूंगा। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। Sometimes the riches comes and it goes। कई बार धन आता है और धन चला जाता है। But you know what the Bible says? Bible says वो धन जो ठहरता है, riches that endures for a long time and righteousness is through the understanding of God। आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, खुदा बाप की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, वो मुझे और आपको धन देती है, वो मुझे और आपको प्रतिष्ठा देती है और ऐसा धन देती है जो कभी मुझसे और आपसे जुदा नहीं होता। I'm not talking about the worldly riches right now. Not just, I'm not saying that the worldly riches is not included in this। इसके अंदर कि दुनिया की जो धन दौलत है वो इससे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा नहीं मिलता, वो भी मिलता है। But I am more focusing on the riches that the Lord gives us। जो परमेश्वर का धन है, जो आत्मिक धन है। You know, we get that riches through the understanding of God। If you want to become rich, if you want to get honor in this world, आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आप चाहते हैं आप धनी हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं we need to have the understanding of God। खुदावंद की अंडरस्टैंडिंग मेरे और आपके जीवन में रहेगी और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदा आपको इज्जत बख्शेगा और आपको धन बख्शेगा। If we have the understanding of God, God is going to bless us with the riches and He's going to bless us with the honor। Let us pray and say, Lord, I want the riches and I want the honor, and for that I'm going to love and seek your understanding। आइए दुआ करें कि परमेश्वर मुझे तेरा धन चाहिए और तेरी प्रतिष्ठा चाहिए और प्रभु इसके लिए मैं तेरी समझ की खोज करूंगा और उससे प्रेम करूंगा। Let us pray। आइए दुआ करें। Father, we thank you for giving us this beautiful word once again। Lord, you are adding so much in our lives।
You are blessing us, Father. You are blessing us each and every day. Thank you for your word. Father, I pray, may our lives be full of your riches and full of your honor. Riches that endures forever, Lord, and give us the honor that we receive through your understanding. प्रभु, आज चाहते हैं तेरा धन और तेरा समझ हमारे जीवन में, प्रभु तेरा धन और तेरी प्रतिष्ठा हमारे जीवन में होने वाली हो सके, और वो वाला प्रभु जो तेरे द्वारा समझ प्राप्त करने के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आज प्रभु हम दुआ करते हैं, हमें अपनी समझ से भर दे, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से भर दे। लॉर्ड, आई प्रे, फिल अस विथ योर अंडरस्टैंडिंग, fill us with your understanding, and may your riches and your honor dwell in our lives. तेरा धन और तेरी प्रतिष्ठा हमारे जीवनों में रहने वाली हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आप हमारे संग जुड़े रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने संग जुड़े रहेंगे। There are many people who have become our kingdom partners, जो हमारे संग हमारे किंगडम पार्टनर बन गए हैं। एंड आपको बताऊं कैसे कैसे लोग, जिनके पास महीने में पैसा ही नहीं बचता है, they have joined us, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमारा पैसा इस्तेमाल हो। एंड दे स्टूड विथ अस, दे आर गिविंग देयर मनी टू अस। वो अपना पैसा दे रहे हैं ताकि हम जाके आगे सेवकाई कर सकें और लोगों को ये सुसमाचार सुना सकें। गॉड मिनिस्ट्री इज नॉट अ मिनिस्ट्री, इट इज योर मिनिस्ट्री। ये हमारी सेवकाई नहीं है, ये आपकी सेवकाई है। आप किसी भी कलीसिया के हों, आप किसी भी चर्च के हों, किसी भी डिनोमिनेशन के हो, इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वी ऑल आर कमिंग टुगेदर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट गॉड मिनिस्ट्रीज सो दैट वी कैन एक्सटेंड एंड पुट दैट इन्वेस्टमेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। इफ यू वांट टू डू इट, प्लीज फॉर्म भरिए, प्लीज फिल द फॉर्म और कॉन्टैक्ट अस एंड टेल अस दैट यू वांट टू बिकम अ पार्टनर्स। आप हमें फोन करके बताएं कि आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू। परमेश्वर आपको आशीष